So the lecture is lecture number 1 of the chapter of EMI, and it is the 12th chapter. It is page number 265 of your textbook. So before we start off this chapter, I have some activity for you. Again, I repeat that this activity is only accessible online. Are you ready for the first one? So I have sent you a question. You have to answer it online. You have 30 seconds to answer and your time has already started. So everyone must participate and everyone must try doing it quickly. You have only 30 seconds. 30 सेकेंड में पोलिंग बंद हो जाएगा. आप सिर्फ 30 सेकेंड तक इसको एक्सेस कर सकते हैं. So if you miss this chance, you cannot do it again. Come on, guys. So 40% has voted. What is the unit of magnetic flux? So these are some basic questions which is required for the introduction to the chapter of electromagnetic induction. So I have 58 students who have participated in this. Okay, I'm going to close it now. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So I'm going to close it now and let's see the results. देखो आप लोगों ने सब मार्क क्या किया है. इज इट करेक्ट? 56% ऑफ द क्लास इज सेइंग वेबर है, बट देयर इज 28% सेइंग इट इज टेस्ला, 13% इज सेइंग पास्कल एंड 4% आप में से बोल रहे इट इज न्यूटन. व्हाट वुड बी द राइट आंसर गाइज? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? Yes, the answer is Weber. Tesla is the unit of magnetic field. Pascal is the unit of, what is Pascal? Pascal is the unit for pressure and Newton is the unit for force. So flux, magnetic flux, आपने कितनी बार पढ़ा है? 11th में भी पढ़ा है magnetic flux. Magnetic flux is the नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी भी कॉइल के अंदर से जाता है. सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी और उसका यूनिट है वेबर. तो हम थोड़ा उसको देखेंगे अभी थोड़ी देर में. आई जस्ट वांटेड टू नो. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? Are you ready for the next question? Yes. So let me see that how many of you all will answer this one. So you have done MEEC, right? MEEC किया है. तो MEEC में आपने टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर किया होगा, और टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल किया होगा. So let me see how many will answer this question, and the question is in front of you. Now let me see who's the fastest, who will do it very fast. The torque acting on a current carrying coil in a uniform magnetic field does not depend upon. आपके सामने आपके स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं. मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड मटेरियल ऑफ द कॉइल. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े. क्वेश्चन है डज नॉट डिपेंड अपॉन. टॉर्क किस पर डिपेंड नहीं करता है. So I think you have to be very, very clear with this. The question is, किस पर टॉर्क डिपेंड नहीं करता? I want everyone, I'm sure everyone can access the poll. It's coming on your screen. So please click on it and participate in it because this is a form of learning. I cannot find out who is clicking what. मुझे सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखता है. I want everyone to participate. तो ही मजा आएगा, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है. So I have 61% of the class who has finished polling. Okay, 70 हो गया. अभी 70 जनता ने कर दिया. Okay, I can see 80 students have completed. Come on, 20 more. 103 participants today in the classroom. Everyone must participate. तो ही तो मजा आएगा. तो ही तो, you know, audience poll चल रहा है. Yes. So you're checking your physics skills. Physics audience poll है ये. Okay, let me see how many. 85 students ने किया है अभी तक voting, and I'm going to stop the voting because it is 1 minute and 45 seconds now. Okay, so 90 students have voted till now.
90 हो गए हैं, मैं बंद कर रही हूँ एंड लेट्स सी इफ इट इज द करेक्ट आंसर. आर यू रेडी टू सी द रिजल्ट्स? आपको आंसर क्या लग रहा है? टॉर्क किस पर डिपेंड नहीं करता? टॉर्क किस पर डिपेंड नहीं करता? ओके, सो दिव्या सेइंग इट्स, व्हाट इज द, yes, so now it's a very close answer. 37% of the class says the torque does not depend on the material of the coil. 22% of the class is saying moment, 16% कह रहा है magnetic field और 24% जनता कह रही है number of turns of the coil. तो क्या लग रहा है? क्या जनता? yes, yes, 24% जनता बोल रही है number of turns. टॉर्क का फॉर्मूला क्या है guys? Torque is Bina sin theta. B-I-N-A sin theta. B-I-N-A sin theta. क्या उसमें मटेरियल की बात होती है? मैंने स्पेसिफिकली आपको बोला कि डज नॉट डिपेंड. किस पर वो डिपेंड नहीं करता? आंसर इज मटेरियल ऑफ द कॉइल. Come on, guys. I want like 100% of the class answering correctly. Okay, are you ready for a third question? So we'll have a few questions in the middle of the lecture also, depending on what we learn. So this is going to be your activity for EMI, and we will see even other activities as well. Are you ready for this one? Now this one, you have to really think. Are you ready? Are you ready, guys? You have to be solid ready. Okay, 1, 2, 3, and it's in front of you. Which is the odd one out? Please click on the right button. Which is the odd one out? Current, magnetic field, force or moment? Come on, guys, come on, faster. Which is the odd one out? I hope you know what's the meaning of odd one out. So now you have to think about this, okay? This is not going to be very simple. Thoda sa dimag lagana padega. Which is the odd one out? Now, depends on how you're thinking, you know. So this is a little tricky question, and I really wanted to know ki which is the odd one out. Options hai current, magnetic field, force or moment. Janta galat bhi ho sakti hai. It does not always mean majority wins, is it? It does not always mean that majority wins. What do you think? क्या लग रहा है आपको? Current, magnetic field, force and moment. Yeah, sometimes majority loses. Yes, Isha. तो कौन है? You know, you have to think a little. When you think about moment, 76 have already voted, 50% of the class. I'm waiting for full voting. अरे कुछ भी click करो यार. Whatever your mind is telling you at that instant, आप click कर दो. See, अभी सोचना नहीं है, because this is a learning process. पहले हम दिमाग को गलत अगर बोलता है तो सही करवा के ले रहे ना, है कि नहीं? कुछ भी आप टाइप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स अ पोलिंग. आई डोंट नो हु इज डूइंग व्हाट, बट आई जस्ट वांट यू टू पार्टिसिपेट बिकॉज यू गेट टू लर्न समथिंग, एक्सपीरियंस इट. दिस इज कॉल्ड a very interesting way of learning. So this is a very interesting. पहले हम दिमाग पे जोर डालते हैं, पहले उसको थोड़ा सा जोर डालना है. Okay, so I have 97 students out of 111 who have voted. So I'm going to end the polling. Are you ready for the results? So 87% of the class has voted. Now let me see that how many. Okay, so Janta कह रही है 48% कह रहा है moment. Why? Because you like the spelling? I don't know. Force is 26%, magnetic field is 8%, and current is 18%. Okay, मैं आंसर बताऊं? इस बार जनता गलत है. Which is the odd one out? Magnetic field, vector quantity. Force, vector quantity. Moment, vector quantity. But ये जो 18% लोग हैं, ये जो 17 लोग हैं जिन्होंने करंट मार्क किया है by fluke or you know just guessed it out or whatever, current is a scalar quantity. मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और मोमेंट वेक्टर है और करंट स्केलर है. नाउ दिस वाज अ रियल वन, इजंट इट? ये थोड़ा सा यू नो गूगली था, है कि नहीं? बाकी तीन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. तो याद रखना कि ये है ना दिमाग पे, बिकॉज इन योर एमसीक्यूज, इन योर एग्जामिनेशंस ऑफ JEE नीट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होता है.
वो मोमेंट पे आपको क्या लग रहा है, आप वो क्लिक करना, ठीक है। सो लेट्स, हाँ कुछ लोग गूगल करने जाते हैं इसलिए टाइम ज्यादा लग जाता है. डोंट गूगल, दीज आंसर्स आर नॉट ऑन गूगल, ओके, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू आर लर्निंग. सो वन लास्ट वन बिफोर वी गो अहेड विद द चैप्टर. एक और हो जाए, बीच बीच में करेंगे, ओके. Let's do, let me see if this one is, so you must have learned that if there is a current carrying conductor, there is a force acting on the conductor. If there is a force, एक कंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रहा है, तो उस कंडक्टर पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, ये तो सबको पता है. So let me check. Are you ready? 10, 9, 8. Are you ready? Yes. 1, 2, 3, start. You have to answer very fast. What is the force acting on a current carrying straight conductor in a uniform magnetic field? What is the force acting on a current carrying straight conductor? अगर मैंने ऐसा बोला कि करंट कैरिंग नहीं है तो फिर आप whatever is your choice, but ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस पर फोर्स कितना लग रहा है. Okay, so I can see आपको चारों ऑप्शन कैसे अच्छे लगते हैं. So 33 people have voted. Come on guys, finish it off. Come on, fast. I want the speed, Speed is what will make you smart. It's on time. It's a time-based exam. Faster. 70% janta, 70 people on 113 have voted it now. Just click on anything, whatever your mind is telling you. So if it's wrong, it will learn it. So if you go wrong, it's a lesson to be learned. But if you win, it's a pat on your back. You'll feel so great today. What a wonderful day it will be that your answer was right. Okay, so I have 94 people on 114 who have voted. So 82% of the class has voted. Where is the rest of the class? Come on, finish it, guys. Let's give 100% voting right now. So 96 people on 114 have voted. चलो चलो चलो, फास्ट फास्ट फास्ट, एकदम खाना खा के एकदम टायर्ड हो गए क्या? Yes, come on. I'm sure everyone is at their lunch and is feeling very nice, but you've got to use that energy. Oh, you're having, I'm sure some of you are having while the lecture is going on. Whatever. I just really need everyone to answer. Yes. So can I stop it? So I'm ending the polling and let's check, kya हाल है. 47% of the class, 98 लोगों ने वोट दिया और उसमें 47% को लगता है बिल साइन थीटा है. 22% ऐसे लोग हैं, मतलब 22 ऐसे लोग हैं जिनको लगता है BIA साइन थीटा है. 9% को लगता है बिट साइन थीटा है और 21% को लगता है कि फोर्स लगता ही नहीं है. क्या बात है. जब हम एक स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ते हैं तो वहां पर आंसर क्या है? सो इस बार जनता करेक्ट है क्या? इस बार आपका ऑडियंस पोल करेक्ट है? यप, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड इट इज बिल साइन थीटा. So I'm going to share the results. So do you want to see your results? देखो ऐसा दिखता है. क्या लग रहा है आपको? तो 21% ऐसे लोग हैं आपके क्लास में जिनको लगता है फोर्स ही नहीं लगना है, फोर्स ही लगाना नहीं है. So 21% of the class is thinking force नहीं लगा. Force हमेशा लगेगा in a current carrying conductor. Okay, anybody remembers this? Do you remember this? ये कौन सा रूल है? आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन. कैन यू टेल मी विच रूल इज दिस? दिस इज विच रूल? इट इज द Fleming's left hand rule. I hope everyone's left hand is like this, like you're shooting somebody. So it is F. What is the thumb? Thumb is the force. What is the pointer? Pointer क्या है? Magnetic field. है कि नहीं? और ये क्या है? I. ये जो थर्ड फिंगर है, मिडिल फिंगर है, जो आपको पॉइंट कर रहा है, इट इज I, करंट. सो इट इज FBI. आई होप यू आर कैचिंग इट. राइट एंगल, एकदम राइट एंगल पे खड़े हैं आप ऐसे. Force up 90 degree. They are all the three of them are mutually perpendicular. So it's FBI. 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 This is Bill sine theta. This is the direction you have to follow. है कि नहीं? There is a right hand rule also.
किस किस को याद है? So I'm just closing this now. So I'm going to enter the chapter. We'll come back for the polling. Is it fine? We'll come back for the polling. So if this is the conductor, if you can see the screen, if this is the conductor और मैंने हाथ ऐसे पकड़ा, what does this indicate? ये आपको क्या बता रहा है? The thumb indicates the direction of the current and the curled fingers is the direction of magnetic field. Very good. अगर thumb ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? कैसा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? तुम्हारा क्लॉक कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी. वेरी गुड. एंटी क्लॉकवाइज. अगर हमने नीचे पकड़ा, if I catch it reverse, then the direction of current is downwards and the curl fingers are going clockwise. So if the current is down, it's clock. If the current is up, it is anti-clock. If the current is going to the left, is it? It is. If the current is going to the left, कैसा भी कंडक्टर में पकड़ू, if the current is going to the left, then it is again clockwise. Observer इस साइड पे खड़ा है तो उसको clockwise दिखेगा. अगर ऐसा पकड़ा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा. राइट जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट जाएगा तो क्लॉकवाइज, ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज और नीचे जाएगा तो क्लॉकवाइज. So I hope you remember all the rules. So I think you already know this, but I thought I will ask you. So now everybody knows this. What is the force experienced by a charge in a magnetic field? कौन बताएगा? Force acting on a charge in a magnetic field. क्या था force acting on a charge? तो अगर आपको याद है, आपको ये डायग्राम दिखाया रहेगा, है कि नहीं? ये डायग्राम दिखाया है. Yes. So what is the force acting on this? This is the direction of the velocity. This is the magnetic field. So if you remember, the formula was F is equal to Q V B sin theta. याद है सबको? ये किसका फॉर्मूला है? When force is acting on a charge. If force is acting on a charge, the formula is Q V B sin theta. So I hope you remember this one. Yeah. Let me go ahead with the next one. What is the torque experienced by a current carrying coil in a uniform magnetic field? Because all of this is important before we start off with EMI. So the torque experienced by the coil can be written in many ways. So I'm just writing the different ways. We can write torque as, yes, we can write it as BI number of turns into A into sin theta. ये एक way of writing है. दूसरा way कैसा है? Anybody? What is INE? I into N into A क्या है? I into N into A क्या है? M. Very good, Aditya. So this is the moment. ये moment का formula है. So it's BM sin theta or MB sin theta. इसलिए torque is a vector quantity which is written as, इसको देखो कैसे लिखते हैं इसको. I think you have already seen this before. It's going to be M bar cross B bar. है कि नहीं? अभी electrostatics भूल जाओ. We are coming into magnetism. So here it is M bar cross B bar. You can also write torque as, torque को ऐसे भी लिखते हैं, I N बाहर लेके आते हैं और A bar cross B bar भी लिखते हैं, because area vector पे वो depend करता है उसका angle. So these are the different ways to write torque, which is acting on a current carrying coil in a uniform magnetic field. Is this understood, guys? Now, what is this? Now, let me see who remembers this. What is the magnetic dipole moment of a current carrying coil? What is the magnetic dipole moment of a current carrying coil? Just now I said, so everyone should remember. कोई भी current carrying coil में magnetic moment is given as INA. है कि नहीं? अगर सर्कुलर कॉइल है तो I इंटू N और ये एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा.
समझ में आ रहा है? INA, या हम लोग A के जगह पे क्या डाल सकते हैं? पाई आर स्क्वायर. Clear, guys? Yes. This is the magnetic dipole moment of a current carrying coil. So I'm just trying to push up all the basic concepts. You should be able to understand it. Can I ask you one more thing? What is magnetic flux? What is its unit and dimension? Magnetic flux हमने 11th में भी किया है. It is B bar dot A bar, which is given as BA cos theta. याद है? It is also given as BA cos theta. This is the flux. कितने यूनिट पता है आपको फ्लक्स के? कितने यूनिट पता है आपको? काउंट करो अपने फिंगर पे और बताओ कि कितने यूनिट पता है. एक ही यूनिट पता है, वेबर. Only one unit. Tesla is not the unit of magnetic flux. वो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है. वेबर गॉस दिखाई दे रहा है मेरे को. वेबर गॉस. ओके, आदित्य सिंह. अगर मैंने आपको 6 यूनिट सिखाया आज तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल टीच यू 6 फैंटास्टिक 6 यूनिट्स. कोई फिर तोड़ ही नहीं पाएगा. आर यू रेडी? कुछ लोग मैक्सवेल भी बोल रहे हैं. वेबर, टेस्ला, गॉस, सब कंफ्यूजन हो रहा है. लेट्स चेक आउट. मैग्नेटिक फील्ड की जब मैं बात करती हूँ, सी एफ इज इक्वल टू क्या होता है? BIL होता है. सी हाउ टू रिमेंबर, पे अटेंशन. F इज इक्वल टू क्या होता है? BIL होता है. नाउ दैट मीन्स दैट B इज इक्वल टू, B का यूनिट क्या रहेगा? F अपॉन IL रहेगा. B की बात हो रही है तो ये क्या होगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर. न्यूटन पर एम्पियर मीटर. सबको समझ रहा है? विच यू कैन कॉल एज टेस्ला. किसका यूनिट है? B का. कॉमन मिस्टेक. एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. नथिंग इज रॉन्ग. Magnetic field is either Newton per ampere meter or it is given by Tesla. 1 Tesla is 10 to the 4 Gauss. Or 1 Gauss is 10 to the power minus 4 Tesla. So ये किसका यूनिट है? ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये किसका यूनिट है? ये किसका यूनिट है? ये मैग्नेटिक इंडक्शन का या मैग्नेटिक फील्ड का. So please write this in your book. Common mistake you can write as a note as you start off today. As a note, point number 1 आप लिख सकते हैं. We are going to look into the units first. I want full clarity of the subject. You cannot make a mistake between Tesla and Weber. This can further be written as Weber per meter square. वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे आता है? ये फॉर्मूला से आता है. Phi is equal to BA. So B is phi upon A. इसलिए इसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है. प्लीज टेक इट डाउन क्विकली. 1 minute I will give you. कंप्लीट हो गया. सो आपको पूरा नहीं करना है. इतना बस हो गया. इतना ही लिखे क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक इंडक्शन के जगह पे आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी वर्ड लिख सकते हैं. प्लीज राइट. मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, या मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं. So either you can say magnetic induction or you can say magnetic flux density or you can simply say magnetic field. Have you written all the 3 names? So it's either Newton per ampere meter or it is Tesla, capital T, or it is Weber per meter square. SI system में हम उसको
Tesla बोलेंगे, right? So in the CGS system, when we are talking, then we write it in terms of Gauss. Okay, so Gauss बोलते हैं 1 Tesla is 10 to the power 4 Gauss. Completed guys, everybody. हो गया? Okay, सबने लिख दिया, right? Okay. So before I get into this, I also want to talk about the 3 names, Bhakti. Magnetic intensity, sorry, not magnetic intensity, magnetic flux density. Should I write it in the chat box? Shall I write it in the chat box for everybody? So I'm just writing the 3 names. Magnetic field, magnetic flux density, और magnetic induction. So आपको चैट बॉक्स में मिल रहा है तीनों वर्ड्स, ये तीनों वर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज किया जाएगा. नाउ लेट्स कम टू फ्लक्स. अब मैं जो बात कर रही हूँ वो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब ध्यान दें. आई वांट मैग्नेटिक फ्लक्स. सो व्हेन आई टॉक अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? कैन आई से इट इज B into A? तो पहला यूनिट देख लो अभी. फ्लक्स इज इक्वल टू B का पहला यूनिट क्या लिखा हमने? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और A क्या होता है? एरिया, सो मीटर स्क्वायर. सो कैन आई से पहला यूनिट है न्यूटन मीटर पर एम्पियर. फ्लक्स का पहला यूनिट न्यूटन मीटर पर एम्पियर. ओके, सो एवरीवन एग्रीज टू दैट. सेकंड यूनिट, सेकंड कौन बताएगा? न्यूटन को जब मीटर मिलता है, फोर्स को जब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं? वेरी गुड आदित्य, जूल कहते हैं. दैट मीन्स फ्लक्स का दूसरा यूनिट आई कैन राइट एज व्हाट? न्यूटन इंटू मीटर इज जूल पर एम्पियर. एवरीवन एग्रीज? जूल पर एम्पियर. अब थर्ड वन, what is ampere? Can I say ampere is coulomb per second? क्योंकि एम्पियर करंट होता है which is charge upon time. So it is coulomb per second. अगर वो coulomb per second है, ये क्या हो जाएगा? जूल सेकेंड पर कूलम. क्या हो जाएगा? जूल सेकेंड पर कूलम. तो एक और यूनिट आ गया, जूल सेकेंड पर कूलम भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. Now who can tell me what is joule per coulomb? What is joule per coulomb? Very good Aditya. Joule per coulomb, work done upon charge क्या होता है? किया है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. W upon Q क्या होता है? W upon Q क्या होता है? ओके, वेरी गुड तेजस, निधि, पीयूष, ईशान, तक्षिता. जूल पर कूलम वोल्ट होता है. जूल पर कूलम वोल्ट होता है. इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया? फ्लक्स क्या हो गया? कैन आई से इट हैज बिकम वोल्ट सेकेंड? क्या है? वोल्ट सेकेंड, बिकॉज जूल पर कूलम वोल्ट होता है. सो हमें वोल्ट सेकेंड मिला. हमें एक और तो पता ही है, कौन सा? वेबर. ये तो पता ही है, पांचवा वाला वेबर. फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है. Now, can I also say, because flux is equal to B into A, can I say flux का यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकता है? क्या हो सकता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, because B is in Tesla. Yes or no? So what are the units? Weber, Tesla meter square, Newton meter per ampere, joule per ampere, joule second per coulomb, and volt second. याद रहेगा? Weber, Tesla meter square. So you can say it with me. Weber, Tesla meter square, Newton meter per ampere, joule per ampere,
joule second per coulomb and volt second. Anybody who can think about the dimension of flux? Dimension of flux. M1, very good Isha, M1, L2, T minus 2, I minus 1. देखो इसको पढ़ना बहुत इजी है. M1 है और लास्ट वाला -1 है, L2 है और T minus 2 है. It's like a mirror image. है कि नहीं? 1, 2, -2 and -1. This is the dimension of magnetic flux. I would like everyone to take down this very important slide number 6. Please take it down, everybody. I'll wait for a minute. Please tell me when it is completed. Okay, so it's completed. Very good. So याद रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट अभी मिस्टेक नहीं होगा पक्का. कौन सा बेटा 4 और 5? जूल पर कूलम जो है ना मानव, जूल पर कूलम इज वोल्ट सेकेंड. जूल पर कूलम वोल्ट होता है और सेकेंड बच गया ना इधर, तो वोल्ट सेकेंड आएगा यहाँ पे. ये बहुत जरूरी है, अभी पता चलेगा ईएमआई में. ये बहुत, ये जो चौथा वाला है ना वो बहुत जरूरी है. फिफ्थ वाला क्या है? वेबर है, जो हमें ऑलरेडी पता है. और सिक्स्थ वाला हम टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक इंडक्शन टेस्ला और इंटू मीटर स्क्वायर. नो, न्यूटन मीटर इज जूल ना बेटा. न्यूटन मीटर पर एम्पियर जूल कैसे होगा भक्ति? न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज जूल ना. फोर्स, हाँ, जब आप अपने टेबल को धक्का लगाओगे तो आपने वर्क डन किया. एम्पियर कहां से आया? करंट तुम्हारे बॉडी से जा रहा है. कहां से करंट कहां आ रहा है? इट्स जूल. या गॉट इट? या डोंट फॉरगेट, याद रहेगा. या न्यूटन इंटू मीटर को ही जूल लिखा ना मैंने. न्यूटन एनएम को ही जूल लिखा ना भक्ति. सो योर क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दैट, यू नो. हाँ, गॉट इट. ओके, डन एवरीबॉडी. मैग्नेटिक फ्लक्स कंप्लीट हो गया पक्का. Are you ready for a poll? बीच बीच में I will irritate you. I want to know. Are you ready for a poll? बीच बीच में मैं आऊंगी अभी, सोने नहीं दूंगी बस. Yeah, are you ready? Okay. So your time is going to start now. 1, 2, 3.
So there is a poll on your screen. Moment of a current carrying coil depends upon. मैंने moment की बात की थोड़ी देर पहले, तो चेक करना है कि किसको याद है. Moment of a current carrying coil depends upon. किस पर वो डिपेंड करता है? मोमेंट किस पर डिपेंड करता है? एम का फॉर्मूला याद करो भाई. एम का फॉर्मूला याद करो, फटाफट क्लिक करो. इट शुड बी वेरी फास्ट. 30 सेकेंड्स हो गए हैं अभी. कम ऑन गाइस, फास्ट, क्विकली, डोंट टेक टाइम. पोल का मजा तब आता है जब फटाफट होता है. देखते ही कौन राइट होता है. मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट के फॉर्मूला को, यस, 67 पीपल हैव वोटेड एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. कुछ भी वोट कर रहे हैं. फॉर्मूला को याद करो. Does it depend on the force? Does it depend on the direction of the magnetic field? Does it depend on the material? Or does it depend on current? Hey Bhagwan. Come on guys, I want this right. Everyone can do it. Perfectly correct. Moment of a current carrying coil. Formula को याद करो. M is equal to INA. That's correct, साहिल. साहिल, तुम्हारा आंसर करेक्ट है. अभी तुम चैट बॉक्स में मत बताओ मुझे. मेरे को जानना ही नहीं है कि कौन आंसर कर रहा है. I just want to know whether majority of the class, ये पोलिंग है, वोटिंग कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए. वोटिंग कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए. बताना नहीं है किसी को क्या वोट दिया. यस, बीच बीच में क्वेश्चन अभी आप एक्सपेक्ट ही करो. हर 15 मिनट में एक क्वेश्चन आएगा. कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा. करना जरूरी है. ओके, मैं रुका रही हूँ अभी. 2 मिनट हो गए. 2 मिनट बहुत ज्यादा है पोलिंग के लिए. सो आई एम गोइंग टू एंड द पोलिंग. आर यू रेडी टू सी द रिजल्ट्स? और आपको बताना है जनता सही है कि गलत है. आई एम शेयरिंग द रिजल्ट. इज योर क्लास करेक्ट? इज योर क्लास करेक्ट? व्हाट डू यू थिंक? Class is not correct. 49% of the class voted for direction of magnetic field. हमने थोड़ी देर पहले, अगर आपको स्लाइड याद है, मैंने यहाँ पर स्लाइड दिख रहा है आपको, मैंने आपको INA is equal to क्या बोला? मोमेंट बोला. Does it depend on the direction of the magnetic field? No. It depends on current. Current दिमाग में अभी रजिस्टर कर दो. Current. The moment is INA, so it depends on the current. तुम लोग बीच बीच में सो जाते थे. Last question. Can I ask you one more before we get into the entire structure? So this all is required for EMI. नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि कोई connection नहीं है. I have started the polling. You can do it quickly. The question is whether iron is diamagnetic, paramagnetic or ferromagnetic. कुछ पोलिंग के आंसर्स देके मुझे लगता है कि तुम कर रहे हो या तुम्हारे भाई बहन कर रहे हैं, या कोई ऐसे ही मतलब आजू बाजू से जा रहा है वो भी जाके क्लिक कर रहा है. बिकॉज सम आंसर्स आई डोंट नो हाउ यू इवन क्लिकिंग दोज आंसर्स. मतलब तुमने अपना फोन दे दिया, आ जाओ भाई तुम भी कर दो, मतलब ऐसा कुछ कुछ आंसर्स देखे मुझे काफी होता है. आयन मैग्नेटिज्म चैप्टर इज ओवर, राइट? आई हैव टू फाइल अ कंप्लेंट इन कोर्ट. आयन क्या है? इज इट पैरा, इज इट डाया और इज इट फेरो? पैरा, डाया, फेरो. क्या वो पैरामैग्नेटिक है? क्या वो डायामैग्नेटिक है? क्या वो फेरोमैग्नेटिक है? सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, डाया, पैरा या फेरो? व्हाट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट? फेरो. ओके, अभी आयन बचपन से पढ़ा था. आयन के फाइलिंग्स लेंगे, फिर मैग्नेट को ऊपर रखेंगे, फिर फाइलिंग्स अट्रैक्ट होगा. सुना है, बचपन में होता था ऐसा. We take a magnet and we see the filings are getting attracted. So what do you think? Is it a weak magnetic field or a strong magnetic field? Okay, so 90 people have voted. I'm ending the polling and let's see the result. क्या जनता इस बार correct है? What do you think? Is 42% of the class says 42% of the class says ferromagnetic, and it is the correct answer. Very good. 42%, मतलब 38 of you all know it. जनता correct है. Yes, majority wins this time, but it's a very small majority. Huh?
38% को पैरामैग्नेटिक लग रहा है और 20% को diamagnetic लग रहा है. It is ferromagnetic. Please remember all the good ones which have a property of, जिनका property क्या है? Can I ask you one last question? Very small, very इसमें तो अगर नहीं आया तो मुझे फिर I don't know. The direction of magnetic induction is from. The direction of magnetic induction is from. Magnetic induction, not magnetic moment. Magnetic induction मतलब तुम्हारा B, magnetic field, कहाँ से originate होता है, कहाँ terminate होता है. आपके एग्जाम के टाइम पर भी मैं ऐसे आऊंगी और आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा टिप्स दूंगी, तो आप आंसर के करीब आते जाएंगे. What is the direction of magnetic field? So I can see that there is a tough competition in the class. 58% have voted. Oh no, if I wish I could share the screen and show you what I'm seeing. There is a close fight. I really don't know who's going to win. It's a very close fight. 50-50 चल रहा है. आगे बढ़ते हुए 20 लोग अगर इस आंसर को बदल सकते हैं, I would be very happy. 53-47% चल रहा है. फटाफट करो पोलिंग, फटाफट. पोलिंग should be done in less than 1 minute. जो भी आपके दिमाग में आ रहा है. Magnetic lines of force originate from dash and terminate at dash. Magnetic lines of force originate from dash and terminate at dash. 94 जनता ने वोट दिया, 85% of the class has voted and I'm waiting for the right answer. The polling is ending now. It's 1 minute and 35 seconds and I'm sharing the results. Such a close fight. What do you think? Is this answer correct? There is so much of confusion. Magnetic induction, yeah, magnetic lines of force always originate from the North Pole and terminate at the South Pole. It is north to south. ये majority नहीं मैं बोल सकती, 55% और 45%. मतलब यहाँ पर भी श्योर नहीं है कि क्या करे. साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन का नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है. Yes, so I hope now no doubt. Magnetic field का direction क्या है? Magnetic field is from north to south. Magnetic dipole moment का direction क्या है? South to north. बैठ गया दिमाग में सबके? Yeah. So please do not make mistake. Okay, now this is very simple. Then we will. In the left hand rule, the thumb indicates. Now I already gave you the explanation. In the left hand rule, the thumb indicates. कुछ लोग का thumb ही नहीं चल रहा है लगता है. Press it. Touch the screen. Give me the answer. Touch the screen. Come on, try it. Touch it and finish it off. It's 30 seconds. The full class can do it. I want the entire class, 100% of the class to participate in it. Then only the fun is. So आपको पता चलता है कि आपके दोस्त क्या सोचते हैं फिजिक्स के बारे में. आपको एक राय मिल जाता है कि आपके दोस्त का फिजिक्स का नजरिया कैसा है कि नहीं. I have left hand rule. मैंने आपको हाथ भी दिखाया था और आपने बोला था yes. Come on, 82% have voted. ये 20 लोग कहाँ गए? 20 लोग मुझे लगता है खाना खाने बैठे हैं, तो उनको वो ऑप्शन टच करने को नहीं हो रहा है. So let's get to the answer. I'm ending the polling and I'm looking at the answer. Would you like to see the answer? Okay, now let me see. In the left hand rule, the thumb indicates F, B, I, F, B, I. The thumb indicates the direction of force. आंसर फोर्स और 55% जनता कहती है फोर्स. 19% ऐसे लोग हैं, 18 लोग हैं आपके क्लास में जिनको मैग्नेटिक फील्ड लगता है.
और 26% को करंट लगता है। आई मिडिल फिंगर होता है, आई 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 आई। तो आज सोने से पहले एफ एफ एफ, बी बी बी, आई आई आई, एफ एफ एफ, बी बी बी, आई आई करके सोना आज, ठीक है। सो ताकि आपको पता चले, चाहिए तो पेन से लिख दो यहाँ पे एफ और यहाँ पर बी और फिर यहाँ पर आई। क्या करना है, स्केच पेन से यहाँ लिख दो एफ, थंब के यहाँ पे फोर्स लिखो, पॉइंटर के यहाँ पे बी लिखो और मिडिल फिंगर के यहाँ पे आई लिखो, यस। और फिर आज सोना और फिर सुबह उठ के वही देखना, अच्छा ये एफ है, ये बी है, ये आई है, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। Okay, so now I'm getting into, so we'll be back with the polling after some time. Now let us come to the chapter electromagnetic induction. You are already aware, have you heard about Orsted's principle? Have you heard about Orsted's principle? So Orsted was a scientist who told us that wherever, Orsted के बारे में कैसे नहीं सुना? So I'll give you an introduction to it. Orsted was the first person. Orsted जो है वो पहला ऐसा व्यक्ति था, उसने कहा था कि wherever there is current, there will be magnetic field. So let me show you a small demo. Can I show you a small demo, guys? So maybe you will remember what you studied. It is the principle on which MEEC stands. So just a minute. So I would like to share the screen. Please look at the screen. 1 minute. Can you see the video? Are you able to see the video? There'll be no sound mostly, but I just want you to observe the Orsted's experiment. So that maybe, you know, when you go back and you want to check it on your own, it's available on YouTube. So you can check it on the screen. So can I play it for you all? So this is the Orsted experiment. This is the principle of magnetic effect of electric current. So can we take a look at it? So in Orsted experiment, Orsted was a scientist who discovered that if you see this, this is a rheostat, this is an electrical arrangement, this is the battery, and this is a wire. और वायर के नीचे उन्होंने कंपस रखा हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कंपस दिखेगा और उन्होंने वो कंपस रखा हुआ है. एंड व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? सो इफ यू लुक एट इट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब करंट पास होता है, व्हेन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सिस्टम, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक नीडल है, नॉर्थ साउथ वाला जो मैग्नेटिक नीडल है, दैट इज शोइंग डिफ्लेक्शन. सो इफ यू सी द पोजिशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, उसको बहुत ही करीब रखा गया है टू दिस वायर वेयर. So if you see when the current is flowing, आपको दिख रहा है, this is the magnetic effect of electric current. ये phenomena Orsted ने लेके आए थे. Orsted ने ये डिस्कवर किया कि जहां जहां करंट होगा वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो उन्होंने उसका पोजीशन चेंज करके भी देखा. देखो पहले जो है मैग्नेटिक नीडल नीचे रखा हुआ था, अभी उन्होंने मैग्नेटिक नीडल जो है वो ऊपर रखा हुआ है, तो भी वो इफेक्ट दिख रहा है. That's why it is called as the magnetic effect of the electric current. That means wherever there is magnetic field, there will be an wherever there is electric current, there will be magnetic field. So अभी याद आया आपको? I hope now you remember that this is the principle on which magnetic effect of electric current relies upon. It's called the famous Orsted's experiment. तो Orsted ने ये बताया था कि जहां जहां करंट होगा वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा. और एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट तो आप जानते ही हैं. याद है हमने दो कंडक्टर्स रखे थे और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट? यस और नो? सो अगर आपको याद है कि तो हम लोग दो कंडक्टर लेते थे, दोनों के बीच में डिस्टेंस x था, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आता था.
फोर्स पर यूनिट लेंथ, और अगर आपको याद है वो दोनों कंडक्टर जो हैं दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट्स. So this you should know because today what we are going to look into is Faraday's experiment. तो Faraday ने क्या बताया? So Faraday ने ये जो बताया, you can see on the right hand side, he said if there is a current carrying if there is a conductor which is wound, और आप मैग्नेट को लेके आ रहे हैं, मतलब उल्टा सोचना है. हमने ऑर्स्टेड में क्या देखा, जहां जहां करंट है वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड है. EMI में आपको उल्टा सोचना है, आपको उल्टा सोचना है. See, you have already done a lot of things. You have to think that now if there is changing magnetic field, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वहां वहां करंट पैदा हो जाता है. किसकी बात हो रही है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर. आपने मोटर देखा है, फैन का मोटर देखा है, कोई भी मोटर देख लो, आपने मोटर देखा है. मोटर का प्रिंसिपल क्या है, मोटर किस पे चल रहा है, करंट देने पे मैग्नेटिक फील्ड होके वो रोटेट कर रहा है या क्या हो रहा है. मोटर का प्रिंसिपल क्या है, who will tell me? मोटर का प्रिंसिपल क्या है? यस, योर टॉर्क. कोई भी कॉइल रहेगा उसको हम लोग क्या देते हैं, करंट देते हैं, वो घूमता है, वो रोटेट होता है. दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मोटर. मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मोटर. अभी ईएमआई किसके बारे में बात कर रहा है? हैव यू सीन अ जनरेटर? जनरेटर देखा है, लाइट चली जाती है तो लोग जनरेटर ऑन करते हैं, इसको खींचना पड़ता है, याद है. आजकल तो हम लोग वो मैकेनिकली कर रहे हैं, बट पहले उसको खींचना पड़ता था. अगर अगर उसको खींचेंगे आप तो क्या होगा, करंट आ जाता है कि नहीं. जो गांव वाव में करंट जाता है, बिजली जाती है, तो वो लोग जनरेटर लगाते हैं, याद है. सो जनरेटर EMI है. मोटर, फैन का मोटर MEEC है. समझ रहे हैं. तो यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, मोटर या जनरेटर. EMI में क्या पढ़ने वाले हैं, EMI में हम जनरेटर पढ़ने वाले हैं, और MEEC में आपने क्या पढ़ा है, मोटर पढ़ा है. गॉट द डिफरेंस? एवरीवन विल रिमेंबर. द मोमेंट आई से मोटर, यू विल से अच्छा करंट है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होके घूमता है. मोटर में करंट है ऑलरेडी, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ होता है बिकॉज ऑफ ऑर्स्टेड्स प्रिंसिपल, और फिर उसके बाद वो घूमने लगता है बिकॉज ऑफ द फोर्स एंड एवरीथिंग, टॉर्क का फंडा. बट व्हेन आई से जनरेटर, आपको समझना है, अरे किसकी बात हो रही है, EMI की बात हो रही है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन. अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखेंगे तो मैग्नेट आगे पीछे करने पर ही वो होगा, मैग्नेट आगे पीछे करने पर ही होगा. अगर मैग्नेट अकेला खड़ा है कुछ नहीं होगा, आपको अंदर बाहर उसको करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको उसको अंदर बाहर करना है. जब आप उसको अंदर बाहर कर रहे हैं तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो जहां चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, चेंज होना चाहिए. मैं मैग्नेट लेके बैठी रही यहाँ पर, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा. यू विल से नथिंग विल हैपन. अगर हम उसको अंदर बाहर करेंगे, नॉर्थ साउथ, अभी कैसे होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले प्रिंसिपल को समझो. अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो ही वहां पर करंट आएगा. वो कैसा होना चाहिए, चेंजिंग. अगर फ्लक्स चेंज होगा, आपको दिख रहा है ये जैसे फ्लक्स अंदर जा रहा है, तो ही आपका वो जो मीटर है, नीचे का मीटर है, वो आपको ज्यादा करंट दिखाएगा. अगर आपने फ्लक्स को चेंज नहीं किया तो वहां कर करंट नहीं दिखाएगा. एवरीवन इज क्लियर विद इट? So this is what this chapter is going to talk about. So in EMI, we first in 1831 फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जहां पर उन्होंने देखा कि जब एक कॉइल को हम एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, और उस कॉइल क्लोज सर्किट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, क्लोज सर्किट होना चाहिए. और जब हम उस क्लोज सर्किट के कॉइल के अंदर से, यू नो व्हाट इज दैट कॉइल, इट्स लाइक अ सोलेनॉइड. दिस इज व्हाट, दिस इज अ सोलेनॉइड. इस सोलेनॉइड के अंदर से जब हम एक मैग्नेट को लेके जाते हैं, इस सोलेनॉइड के अंदर से हम एक मैग्नेट को लेके आते हैं, तो उसके अंदर करंट पैदा हो रहा है. अगर करंट है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आया, और आप पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे, यू विल से EMF इज जनरेटेड. सो दिस वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट फैराडे, इसलिए इसको फैराडेज लॉ कहते हैं. इट्स अ फिनोमिनन.
ये देखा गया कि जब एक सोलेनॉइड जैसे कॉइल के अंदर से मैग्नेट को अंदर बाहर करते हैं तो करंट क्या होता है, कभी लेफ्ट गया तो कभी राइट गया. यू नो व्हाट इज दिस गैल्वेनोमीटर? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है, इट्स अ सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर. You know this galvanometer is going to give you readings like this also and like this also. यानी कि ये जो galvanometer है, कभी करंट ऐसे जाता है, कभी करंट ऐसे जाता है. So what do you think, is this DC or this is AC? जब हम मैग्नेट को अंदर लेके जाते हैं तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज में, जब हम मैग्नेट को बाहर लेके आते हैं तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कभी ऐसे फ्लो होता है कभी वैसे फ्लो होता है. दिस करंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, वेरी गुड ईशा, निधि, पीयूष, इट्स ऑल्टरनेटिंग करंट. EMI चैप्टर में हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, और जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो हम डीसी डैनियल सेल पढ़ रहे थे. डैनियल सेल जो है वो डीसी है, डायरेक्ट करंट है. 5 वोल्ट बोला तो 5 ही वोल्ट है. बट एसी मतलब क्या होता है, -5 टू +5, -5 टू +5, साइनोसॉइडल. 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0, -1 -2 -3 -4 -5. Are you getting this? I hope it's clear for everybody. It's an alternating current that we generate in EMI. ये not only when magnet is going through a coil, ये ऐसा भी देखा गया कि जब दो कॉइल को, आज इंट्रोडक्शन है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या देखा गया. अगर आप दो कॉइल को रखते हैं तो दो कॉइल में एक में से करंट पास होता है, हम देखते हैं दूसरे कॉइल को भी मिलता है. दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर में ऐसे होता है, एक करंट, आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, उसका पहला चीज जो लेफ्ट साइड पे पहला जो डायग्राम होता है, इट इज अ ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI. हम ट्रांसफॉर्मर को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. तो यहां पर जो है एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और दूसरे कॉइल को उसके नजदीक लेके आएंगे, दूसरे को भी करंट मिलता है. क्यों? कोई सोच सकता है? जब एक में करंट फ्लो होता है तो उसके सेंटर में क्या होता है? जब एक में करंट फ्लो होता है तो उसके सेंटर में कौन होता है? उसके सेंटर में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. उसके सेंटर में क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. बिकॉज यू मस्ट हैव स्टडीड फ्लक्स. फ्लक्स इज नथिंग बट B into A. और सोलेनॉइड का, कोई भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? μ0 Ni. हैव यू स्टडीड दिस फॉर्मूला? μ0 Ni. तो जहां जहां करंट होता है वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां फ्लक्स होता है. क्लियर है सबको? आई रिपीट वंस अगेन, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फ्लक्स होगा, मतलब जहां करंट होगा वहां फ्लक्स होगा. समझ में आ रहा है? phi is equal to BA, but B is μ0 Ni. मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. सो जहां करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां फ्लक्स होगा. सिर्फ EMI में याद रखना, जस्ट फ्लक्स विल नॉट डू. यू हैव टू से चेंज इन फ्लक्स. यू हैव टू से चेंजिंग फ्लक्स. चेंजिंग फ्लक्स से ही दूसरे कॉइल को क्या मिलेगा? करंट मिलेगा. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ EMI. सो दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए कि अगर एक कॉइल के अंदर बाहर हमने मैग्नेट किया, या दूसरे कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा है एक ऐसे कॉइल के सामने रखा गया जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसमें भी देखा जाए. सो दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ. फैराडे कहता है whenever there is change in magnetic flux in a closed circuit, an EMF will be induced in the circuit. ये आपको पढ़ना पड़ेगा. This is the first definition of the chapter. Whenever there is a change in the magnetic flux in a closed circuit. सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए. अगर क्लोज्ड सर्किट है देन ओनली उस सर्किट के अंदर क्या आएगा? तो आप अपने घर का एक बैंगल ले ले, यू नो. सो इफ यू हैव अ बैंगल, दैट बैंगल जो होता है वो आपका क्लोज सर्किट है. अगर सर्किट क्लोज्ड है और आपने मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर पैदा किया किसी भी तरीके से, either by using another coil or using a magnet, then there will be an EMF. So what you have to understand from this, that if there is a coil and if there is a magnet, और इसको मैंने आगे पीछे किया,
राइट? तो इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है? ये समझ में आ रहा है सबको? और करंट फ्लो कैसे होगा कि जब मैंने मैग्नेट को आगे लाया तो करंट ऐसा होगा, अगर मैंने इस मैग्नेट को पीछे लाया तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। मैं इतना चाहती हूं कि आप आज समझे कि मैग्नेट को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो डायरेक्शन अलग है, जब हम मैग्नेट को बाहर लेके जाएंगे तो डायरेक्शन अलग है। ये आपको समझना पड़ेगा। फ्लक्स विल चेंज बेटा, बिकॉज मैग्नेट के चारों तरफ फ्लक्स है ना दिव्या। मैग्नेट क्या होता है, इसने तो पूछा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। तो जब आप मैग्नेट को लेके आ रहे हैं तो फ्लक्स ज्यादा अंदर जाएगा, इसलिए तो वो डायग्राम दिखाया, देखो यहाँ पे दिख रहा है दिव्या, कैन यू सी इट? सो जैसे वो अंदर जाएगा तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना बेटा, और जब हम उसको बाहर लेके आएंगे तो फ्लक्स कम हो रहा है। तो फैराडे क्या कहता है कि जब हम मैग्नेट को अंदर लेके जाएंगे तो डायरेक्शन अलग है, और जब हम उसको बाहर लेके आएंगे तो डायरेक्शन अलग है। यानी कि आज हमें जो यहां देखने को मिल रहा है, इट्स कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। आएगा जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ इट इज, मतलब व्हाई इट इज एंड ऑल दैट, वो हम पढ़ेंगे। बट अभी हम सिर्फ फिनोमेना देख रहे हैं बिकॉज इट्स अ न्यू कंसेप्ट। तो पहले फिनोमेना देखेंगे, उसको समझेंगे कि फ्लक्स जब चेंज होता है, यस देयर विल बी चेंज इन करंट, क्योंकि करंट जो आपको मिल रहा है इस बार, इट्स ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा करंट, इसको क्या कहते हैं? साइनोसॉइडल। क्या कहते हैं? आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, आपके प्लग पॉइंट पर जो ऑल्टरनेटिंग करंट है आपके घर पे, इस साइनोसॉइडल करंट। तो चेंज तो होगा ही ना। मैग्नेट जब अंदर आ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, ईएमआई बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। निकाल दिया तो ईएमआई कम हो रहा है, मतलब ईएमएफ कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है। बढ़ाया बढ़ेगा, यही तो कम होगा, तो वेरी तो होगा ही ना। जब हम डीसी की बात करते हैं तो कैसा आता है डीसी? स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन, स्टेडी, है कि नहीं? अगर आप बोलते हैं मेरा मोबाइल चलता है 3 वोल्ट पे, तो वो 3 वोल्ट पे चल रहा है, यानी कि वो फिक्स है। हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट घर पे डीसी होते हैं और हमारा प्लग पॉइंट एसी होता है, और उसको कन्वर्जन का काम करता है कौन? रेक्टिफायर और ट्रांसफार्मर। 220 वोल्ट अगर आपके प्लग पॉइंट पर है तो कितना खींचना चाहिए वो ट्रांसफार्मर डिसाइड करता है, उसको स्टेडी कैसे रखने का वो रेक्टिफायर डिसाइड करता है। समझ रहे हैं? सो वी हैव 3 थिंग्स इन योर अडेप्टर। आपके अडेप्टर में 3 चीजें हैं, उसके बाद ही आपका चार्जिंग होता है। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर। 3 चीजों के बाद वो सप्लाई आपके मोबाइल तक पहुंचता है, और फिर हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट फिर डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है। तो हम जो चीजें यूज करते हैं वो डीसी है, पर घर पर जो सप्लाई आता है वो एसी है। आई होप दिस बेसिक इज अंडरस्टूड। तो फैराडे ने ये कहा जब मैं मैग्नेट को अंदर लेके जाऊं, आपका इमेजिनेशन कैसा होना चाहिए? देखो ऐसे, यहां पर रहेगा तो ऐसा होगा, थोड़ा और अंदर जाएगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, है कि नहीं? जैसे जैसे आप मैग्नेट को लेके जाएंगे फ्लक्स बढ़ता जाएगा। So he says whenever there is a change in magnetic flux in a closed circuit, EMF will be produced in the circuit. We are on page number I think 266. Those who have the textbook can see it. 65, 66 में है हम लोग फैराडे के फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर रहे हैं। फैराडे ने एक और लॉ डिफाइन किया, मतलब टू मेक द कंसेप्ट वेरी क्लियर। He says the magnitude of the EMF induced in the circuit, मतलब जो EMF induce यहां होगा is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. ये आपका फॉर्मूला है। See, whenever I say na that I'm taking a magnet slowly, and when I said if I'm taking a magnet fast, आपको क्या लगता है? करंट कम होगा या ज्यादा होगा? व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज नथिंग बट आई इनटू आर। आई इज द करंट इन द कॉइल एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉइल। ध्यान से बताना मुझे, अगर मैं मैग्नेट को आराम से लेके ओके, और फिर मैं फास्ट लेके, इफ आई ब्रिंग इट फास्ट इज द ईएमएफ मोर, और इफ आई ब्रिंग इट स्लो इज द ईएमएफ मोर। किस केस में ईएमएफ ज्यादा रहेगा?
अरे सोचो ना बच्चा, एवरीबडी कैन थिंक, डी टी नीचे है और ईएमएफ इधर है, दे आर इनवर्स। अगर टाइम कम लग रहा है मतलब ईएमएफ ज्यादा लगेगा। जब आप फास्ट लेके आएंगे, फास्ट मतलब टाइम कम तो ईएमएफ ज्यादा, ईएमएफ ज्यादा तो करंट ज्यादा, है कि नहीं? अगर स्लो लेके आए, स्लो लेके आए, स्लो लेके आए, स्लो लेके आए, कॉइल है यहाँ पर और मैं स्लो लेके आ रही हूँ, अगर मैं स्लो लेके टाइम ज्यादा लगा, अगर टाइम ज्यादा लगा, फॉर्मूला की तरफ देखो, अगर टाइम ज्यादा लगा तो ईएमएफ कम, करंट कम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए हमारे जनरेटर्स क्या रहते हैं, फास्ट रहते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट आरपीएम? स्वदेश पिक्चर देखा है किसी ने? किसी ने स्वदेश पिक्चर देखा है? स्वदेश में जब उसको बिजली बनाना होता है तो वो बोलता है कि मेरा इतना आरपीएम घूमना चाहिए। जाओ देखो ये पिक्चर, स्वदेश, मैम ने बोला है देखने के लिए। रेवोल्यूशंस पर मिनट, जब आप सुपर फास्ट जाना चाहिए, जितना फास्ट आप जाएंगे उतनी ज्यादा बिजली बनेगी। तो जितना फास्ट आप जनरेटर को घुमाएंगे, जितना फास्ट वो घूमेगा, उतना जल्दी आपका करंट बनेगा, उतना ज्यादा करंट बनेगा। इज इट क्लियर? यस और नो? क्या एक विंड मिल से पूरे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है? क्या एक विंड मिल से पूरे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। अपने को हजारों एकर्स में विंड मिल होगा तब आएगा। उतना जनरेट करने के लिए हमें उतना पावर बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? वी आर यूजिंग दैट मच। So either by water or by wind we are, or solar, we are trying to create energy, and that energy is then later converted into electrical energy. So now I want you to take down the first law. क्या सब लोग first law लिख सकते हैं? Because this is very important. Please write the first law in your book. Please write the first law in your book. हाँ, it takes time सत्यम, correct. तुरंत नहीं होगा बेटा, वही तो उतना पहुंचना पड़ेगा ना, then it's yes, correct. So it takes a fraction of seconds. There will always be a delay. Yeah. So whenever there is a change in magnetic flux, I want everyone to learn this definition. This is the first law. This is the first law. Is it over? Whenever there is a change in magnetic flux in a closed circuit, an EMF is induced in the circuit. Please write the second law. आप वो नीचे का equation भी लिख सकते हैं. The magnitude of the induced EMF, I'm just reading what the equation is saying, Divya. E is directly proportional to d phi by dt, जो आपके स्क्रीन में है उसी को वर्ड्स में लिखा है. The magnitude of induced EMF produced in the circuit, मतलब E, is directly proportional to, हमने अभी तक उसका explanation नहीं देखा है, we are looking at the definition. हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि जहां चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वहां ईएमएफ होगा, और जहां चेंज इन ईएमएफ मतलब wherever there is a EMF generated, absolutely there will be current. So we are just studying that the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux that is linked with the coil. Do you understand when I say linked with the coil? बेटा कितना फ्लक्स अंदर जाता है, बाहर घूमने दो कितना. अगर मैंने कहा कॉइल यहाँ रखा है, मैंने मैग्नेट यहाँ रखा, कुछ होगा? कुछ होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ. कॉइल रखा है, मैग्नेट रखा है, दोनों खड़े हैं स्टेशनरी, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा. रिलेटिव मोशन चाहिए मुझे रिलेटिव मोशन चाहिए. आई नीड मोशन, देन ओनली इट विल हैपन. अच्छा ठीक है, ऐसा सोचते हैं मैग्नेट को मैंने ऐसे ही रखा, ठीक है, मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है और कॉइल को आगे पीछे किया, कुछ होगा? यस और नो? अगर मैंने मैग्नेट को, यस होगा. ऐसा थोड़ा ना एक वे में ही सोचना है. यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट, अलग सोचो. चेंज इन फ्लक्स होना चाहिए भाई. कॉइल स्टेशनरी हो, मैग्नेट मूव हो रहा है, मैग्नेट स्टेशनरी हो, कॉइल मूव हो रहा है, कुछ तो मूव होना चाहिए. रिलेटिव मोशन चाहिए. मोशन नहीं है, कुछ नहीं होगा.
मैंने कहा कॉइल यहाँ रखा है, मैग्नेट उधर रखा है, बहुत पास रखा है मैग्नेट को, ऐसे रखा है, कुछ होगा? नहीं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हुआ। चेंज नहीं होगा तो ईएमआई नहीं होगा, करंट दिखेगा ही नहीं, आप खड़े रहेंगे ऐसे, हाथ दुखेगा आपका। दिस लॉ, ये जो लॉ है, इट इज सेइंग दैट ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। EMF is directly proportional to d phi by dt. It's a quantitative law. Quantity मतलब कितना current, कितना EMF. It's a quantitative law and it is given in magnitude as E is directly proportional to d phi by dt. Is this slide over, guys? If you don't want to write, anyway, this is there in your textbook. Please write it in your notebook, the first law and the second law. Yes, yes, Shaurya. Yes. बिकॉज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है ना, तू सोच ना मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कॉइल यहाँ है, मैंने मैग्नेट को यहाँ रखा है और कॉइल को इस बार आगे पीछे किया, कॉइल आएगा ना, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है। तो अगर आप कॉइल को अंदर लेके आएंगे तो आप इमेजिन करो, जब कॉइल अंदर, दैट्स व्हाई आई पुट दिस ये जो है ये रखा है, ये तो मैंने मैग्नेट को अंदर लेके आए। अगर उल्टा सोचो ना, मैग्नेट खड़ा है, कॉइल को लेके जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। यस मानव, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। दिस वन, या वी विल सी भक्ति। भक्ति रुक जाओ, वो विंड मिल अलग है, वो प्रिंसिपल। यू कैन, इट्स नॉट अबाउट रोटेटिंग फास्ट, इट डिपेंड्स ऑन द विंड है ना, हम लोग डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। यहाँ पर हम खुद पर जनरेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड यूज करके। भक्ति, हम डिपेंडेंट है ना बेटा उस पर, हवा आएगी तो होगा ना, है कि नहीं? या यहाँ पर हम खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मानव, इज इट कंप्लीटेड फर्स्ट लॉ? तुम्हें स्लाइड चाहिए था? ओके, बहुत ज्ञान हो गया। पोल हो जाए, जाने से पहले एक पोल हो जाए। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ सिर्फ मैग्नीट्यूड पढ़ा है हमने। आर यू रेडी फॉर द पोल? देखते हैं किसको याद है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्रिंसिपल ऑफ। Torque acting on a coil in a uniform magnetic field is a principle of, किसका प्रिंसिपल है? फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो, मोटर या जनरेटर? आई वांट क्विक आंसरिंग एवरीबॉडी। स्पीड होना चाहिए, स्पीड। यप, 10। अभी इस बार मैं 30 सेकेंड्स ही देने वाली हूँ, फास्ट वोटिंग होना चाहिए। There is a close fight. Torque acting on a coil, chapter MEEC. Is it talking about the motor or is it talking about the generator? It's a very close fight, guys. My God. 74% of the class has voted. 97 में से 73 students ने अभी तक vote किया है. Come on, guys, faster. Faster. This is really, I'm going to stop it. I'm going to stop the polling. I'm very disappointed to see the result. Can I show you the result? 50% आपका क्लास बोलता है मोटर और 50% of the class is saying generator. Who is correct? Who is correct? Oh my goodness, people are saying in the chat box, yes, your friends only. तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दोस्त। आंसर क्या होना चाहिए था? हाँ, 50-50 लाइफलाइन यूज करो तुम लोग। What is the answer? The answer is motor. क्या है आंसर? टॉर्क का आंसर क्या था? मोटर था। जनरेटर अभी तक पूछा ही नहीं मैंने अभी तक। हे भगवान, क्या होगा इस क्लास? रेडी फॉर अनदर वन? कम ऑन गाइज, आई वांट कंप्लीट। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
whenever there is a change in magnetic flux and EMF is induced in the coil, which law is this? Is it the Faraday's first law? Is it the second law? Is it Faraday's first law or is it Faraday's second law? So there is a close fight now. Yeah, so now ये तो भाई मिस्टेक नहीं होना चाहिए. अब भी स्लाइड बंद किया है, इसमें तो 100% आना चाहिए. इसमें तो 100% आना ही चाहिए. Okay, I am declaring the results now. And the answer is, it is the first law. Come on guys, ये तो मैं चाहती हूँ कि 100% सही बोले. अभी भी 24% को, वो तो स्क्रीन पर भी था. It was on the screen, wasn't it? Okay, let's try something. Are you ready guys? Abhi na, I really want the answer. Nahi to I'm going to give you all. 1, 2, 3. Start. Which is not a unit of magnetic flux? सोच के करना. Not a unit of magnetic flux. Come on, I want this correct. I want 100%. Work harder. Think. 6 यूनिट बताए मैंने फ्लक्स के आपको, और मैंने पूछा कि विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. यू हैव टू समझिएगा कि क्लास में पे अटेंशन होता है कि नहीं. नॉट पूछा है, नॉट यस और नो. क्लिक ऑन इट, टच द स्क्रीन, गिव मी द आंसर. ओके, कैन आई स्टॉप द पोलिंग? कौन सा यूनिट नहीं है? कुछ लोग अपना नोटबुक खोलने गए हैं, कुछ लोग गूगल पे टाइप कर रहे हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों को पूछ रहे हैं ग्रुप में कि क्या भाई तूने क्या वोट किया. क्या चल रहा है पता नहीं. कुछ लोग फोन पे भी रहेंगे, क्या भाई तूने क्या किया. Yeah, so the more the smileys in the group, in the chat box, tells me that yes, today is a very lucky day. Yes, Atharva, today is a very lucky day, and I'm closing the polling. And let's share the answers और देखते हैं कि जनता इस बार करेक्ट है कि नहीं. क्या जनता करेक्ट है? Is the Janta correct? Which is not a unit of magnetic flux? Yes, Janta is absolutely correct. All of you bright students, 56 bright students in my class. 56 people who are using common sense. Newton per ampere meter is the unit of magnetic induction. Yes, 56 students are paying attention. 12 were drinking chai, so they forgot what it is. So ulta ho gaya. Are you ready for one last one before we end the session today? एक और हो जाए, क्या बोलते हो? So let me check which one I have not shown you. Okay, let me see if this one you will do. ऑर्स्टेड का प्रिंसिपल किसके लिए एप्लीकेबल है? मोटर के लिए या जनरेटर के लिए? ये तो सुपर फास्ट होना चाहिए था. ऑर्स्टेड का प्रिंसिपल, ऑर्स्टेड का प्रिंसिपल मैंने आपको दिखाया भी. करंट जब जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. तो वहां पर कौन सा प्रिंसिपल? जनता, जनार्दन, स्टूडेंट्स ऑफ द जून बैच. ये कौन सा बैच है? जून बैच ना. ऑर्स्टेड ने बताया था कि जब करंट पास होगा, जब करंट पास होगा तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा. सो ऑर्स्टेड का प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ विच चैप्टर? एमईसी की ईएमआई. ऑर्स्टेड ने एमईसी की बात की. द आंसर was I am going to end the poll now. The answer was motor. Answer was motor. क्या होगा अभी? जनता is wrong. Generator is Faraday's law. Orsted's principle is motor. Orsted's principle is motor. जाते जाते सही जवाब देने का इरादा नहीं लगता है.
Okay, last question. Whenever there is a change in magnetic field, can there be generation of current or EMF? Can there be, अगर magnetic field change होता है तो क्या वहां generation of current या EMF होगा? Please answer it correctly. If there is a change in magnetic field, is there a generation of current or EMF? क्योंकि अपन ने जितना पढ़ा था उतना याद करते हुए. How much ever you remember at the end of today's lecture. So it's 40 seconds in my this thing and I'm closing it. Time limitation and I'm sharing the results. So I'm happy at least 62% of the class, 87% of the class say yes. And yes is the correct answer. So I hope you enjoyed today's lecture. And before ending, give me the polling on how was the lecture today. So give me the polling on how was the lecture today now, so that it will encourage me to find out more ways of getting interactive lectures. So I want all of you to vote for today's lecture. Okay. So thank you so much for joining me, guys, for the first session of EMI. And I hope we will be able to do more activities during your online class. Thank you and bye-bye. And thank you for that result. You can see it on the screen. And I'm very happy. Thank you for the class. Thank you for attending online. Take care and bye-bye.